लिटरली कॉस्टेड मी लाइक एटलीस्ट 100 रैंक। लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है यार, एंड क्लैट बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल होता है। मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू एब्सोल्युटली नीड टू नो। Hello guys, welcome back to my channel. If you do not know me, I am Shireen. I'm a second year student at NUJS Kolkata. Also, like before I start, there is some construction going on around my house, so I'm really sorry if you get any noise. But आज की video is very important. So मैंने एक बहुत ही सिमिलर वीडियो एग्जैक्टली एक साल पहले बनाया था फॉर माई क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स, एंड आई हैव गॉटन सो मेनी कमेंट्स, सो मेनी मैसेजेस अबाउट हाउ यूजफुल दैट वीडियो वॉज फॉर देम, for their confidence when they stepped into the exam hall. And so this video is basically somewhat that video, but मैंने कुछ extra points भी add किया है, कुछ extra tips add किए हैं for, but this is going to be more of a mindset building and last minute tips and tricks that you absolutely need to know before stepping into the exam hall. So yes, if there's any other CLAT aspirant that you know of, please send them this video as well so that they can also benefit, because we here believe in sharing, we do not believe in holding back information. So yes, without any further ado, let's get into the video. सबसे पहले, when you go to give the CLAT exam, let me just tell you that you are expected to fill the questions and the answers in an OMR sheet. So अगर आपने अभी तक वो नहीं किया है तो please get into the habit of filling an OMR sheet. अभी भी आपके पास है 15-20 दिन बिफोर योर एग्जाम, डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई वुड जस्ट से एटलीस्ट टेक 2 मॉक्स विद OMR शीट्स. अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आप कोचिंग में नहीं मॉक्स देते तो OMR शीट फिल अप इज़ अ होल डिफरेंट टेक्निक इन इटसेल्फ, जो आपको बहुत अच्छे से मास्टर करनी पड़ेगी, बिकॉज आप इतनी ज़्यादा प्रिपेयर करते हो, इतना कुछ करते हो, एंड देन if you're not used to the OMR sheet, you can make mistakes as to the numbering, you can make a lot of mistakes, and उससे आपका marks कम हो सकता है. I remember मैंने गलत fill कर दिया था, literally costed me like at least 100 rank. So these are very big mistakes. Now in terms of OMR filling, there are, I'm really sorry about the construction noise guys. When it comes to the OMR filling, आप 3 तरीके से कर सकते हो. या तो आप हर क्वेश्चन के बाद आप OMR को फिल कर सकते हो, या तो आप 4-5 क्वेश्चंस या एक ब्लॉक चंक ऑफ क्वेश्चंस के बाद आप फिल अप कर सकते हो, या थर्ड इज आप पूरा पेपर करने के बाद एंड में कर सकते हो. सो आई एक्चुअली डू नॉट रिकमेंड द थर्ड वन एट ऑल. The reason being, you don't never know when you can run out of time, and yeah, so like you just don't want to take that risk. But the first two methods, it depends on how you want to do it. Personally, मुझे बहुत annoying लगता था every question के बाद OMR fill करना, so I would do like 4-5 questions and then I would fill it. That's how I found to be the most time effective way, but again, each your own, but I would definitely suggest against the third. And also please factor in your OMR filling time in the exam का 2 घंटा itself. वहाँ पे in coachings and all, they generally give you the OMR पहले से fill up करने के लिए and stuff like that, but that's not the right way to do it, because you have to factor in that 4 से 5 minute time into the 2 hours of the paper itself. And please fill your OMR in the beginning, and please fill it very very properly, एकदम mind ठंडा करके. It's fine if you aren't able to do let's say 2 more questions, but अगर आपने अपने OMR में गलती कर दिया, आपने कुछ information गलत fill कर दिया, तो it's going to cost you a lot more than maybe not attempting one question. So definitely OMR is very important, and इस चीज़ को आप हैबिट बना लो. अभी जितने भी मॉक्स करोगे उसको प्रॉपरली OMR फिल अप करके ही करो. The second thing is, be prepared for surprises. CLAT as an exam is one of the most unpredictable exams you can get. Like, I'm not even joking with you guys. CLAT बहुत ज़्यादा unpredictable होता है. Every year the paper is like ऊपर नीचे, वो लोग क्या करते हैं उन्हें खुद नहीं पता है, and they don't even follow their own sample papers. Okay, so don't expect कि मतलब whatever you have prepared for is exactly what is gonna come. So आप जहाँ पे जाते हो, it will test you in a lot of ways, and one of them is your ability to be dynamic, your ability to change as an according to the requirements of the paper. So वहाँ पे जाके एग्जाम हॉल में you have to understand that ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट आ जाए, या लिटरली जो भी आपने पढ़ा आपको कुछ नहीं आता है वहाँ पे, या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है. बट आई वॉन्ट यू टू बी काम एट दैट मोमेंट एंड अंडरस्टैंड दैट अगर पेपर डिफ़िकल्ट है तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट है, सिर्फ आपके लिए ऐसे अलग से डिफ़िकल्ट पेपर तो उन्होंने नहीं बनाया है. एंड द सेकेंड थिंग विच इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सकता है आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है बिकॉज ऑफ अ मल्टीपल, मे बी यू आर वेरी एंशियस, और अनदर रीज़न इट कुड बी दैट आप जो पर्टिकुलर क्वेश्चन करो वो डिफ़िकल्ट हो सकती है. सो हम क्या हो जाते हैं, हम एक क्वेश्चन देखते हैं, हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है, एंड वी स्टार्ट जजिंग द एंटायर पेपर बेस्ड ऑन दैट वन क्वेश्चन दैट वी वर अनेबल टू डू. हो सकता है एक पर्टिकुलर सेक्शन बहुत डिफिकल्ट हो, या एक पर्टिकुलर पैराग्राफ वाली क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, बट बाकी पैराग्राफ्स आर रिलेटिवली ईजियर. सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग वेरी स्टक इन दैट कि अरे ये तो हमसे नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मूव ऑन, लर्न द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन एंड गो टू द अदर सेक्शंस और गो टू अनदर क्वेश्चन एंड सी वो सॉल्व हो रही है कि नहीं, क्या वो भी उतनी ही डिफिकल्ट है. चांसेस आर वो उतनी डिफिकल्ट नहीं है. जीके बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है विद रिलेशन टू जीके की, क्या जीके अच्छी
आएगी ये नहीं आएगी. सो लेट मी टेल यू गाइस, अगर जीके डिफिकल्ट आई, ऐसी कुछ क्वेश्चंस आई जो आपको देख के लग रहा है ये तो मैंने किसी मैराथन में नहीं देखा, ये तो मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेपर में नहीं देखा, ये तो मेरे प्रिपरेशन में कहीं नहीं था, चांसेस है वो जीके इतनी ही डिफिकल्ट है सबके लिए, क्योंकि सब ऑलमोस्ट सेम ही सोर्सेज रेफर करते हैं एट द एंड ऑफ द डे. सो आप ज़्यादा वर्कअप मत हो जाइए उस सब चीज़ों को लेके. थिंक अबाउट, अगर जीके डिफिकल्ट हुआ तो सबके लिए होगा, किसी को नहीं आएगी, तो कट ऑफ विल कम डाउन नेचुरली. सो मेरे पेपर फॉर एग्जांपल 2023 की पेपर वाज वेरी नोटोरियसली डिफिकल्ट कंपेयर टू अदर क्लैट ईयर्स, एंड कट ऑफ केम डाउन वेरी सिग्निफिकेंटली. मतलब मुझे जितना मिला था, आई गॉट लाइक 84 or 85 एट दैट टाइम, which was one of my lowest scores ever in my life, by the way. Like my clat score was like my worst mock score probably. And वहाँ पे like which was like 83 or 84 मिला था. My clat paper was not good. You can look into my clat जर्नी, मैं वीडियोस लिंक कर दूंगी. एंड वहाँ पे आई गॉट 553 रैंक. अगर आपको 84 या 85 मिलती किसी और ईयर में, तो हो सकता है आपको टॉप 1000 में भी रैंक ना मिलती. तो इट रियली फ्लक्चुएट्स. सो डू नॉट थिंक लाइक दैट. अगर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, अगर ईजी है तो सबके लिए ईजी है. सो डिपेंडिंग ऑन दैट हाउ मेनी क्वेश्चन यू अटेम्प्ट इज गोइंग टू चेंज इन द पेपर. इन वॉट ऑर्डर यू अटेम्प्ट ऑल्सो इज गोइंग टू चेंज. सो बहुत लोग बहुत सेट होकर जाते हैं कि हम इसके बाद मैं ये करूँगी, इसके बाद ये करूँगी, इसके बाद ये. चांसेस आर कि ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन इतना डिफिकल्ट है कि आप, जैसे आप इंग्लिश से स्टार्ट किया और आपको लगा कि ओ माय गॉड इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट, तो डोंट फॉलो दैट सेट पैटर्न दैट यू हैड इन योर माइंड. बी डायनामिक, चेंज इट, को किसी और सेक्शन पे चले जाओ, लेटर ऑन रिविजिट इंग्लिश. सो दिस इज जस्ट थिंग्स दैट विल हेल्प यू, बिकॉज एक अच्छा टेस्ट टेकर वही होता है जो चेंज कर सकता है विद द सिचुएशन, राइट. थर्ड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट कैरी योर लास्ट मॉक स्कोर विथ यू टू द पेपर. सो हमारे पास क्या होता है, आप एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपने एक मॉक किया, विच बाय द वे प्लीज डोंट डू अ मॉक राइट द डे बिफोर योर एग्जाम. द डे बिफोर योर एग्जाम यू सपोज टू चिल, यू सपोज टू काम योर नर्व्स डाउन. आप मॉक्स मत करना. ऐसा नहीं है कि आपके एक मॉक से आपका कुछ बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो डू नॉट डू अ मॉक द डे बिफोर योर एग्जाम. बट वट एवर मॉक आपने किया है बिफोर यू केम टू द एग्जाम, वो a lot of us get so anxious and start attaching a lot of value to that कि अरे मतलब ये वाला मॉक जो था मेरा लेटेस्ट, ये बहुत ही गंदा गया, मुझे 60 मिल रहे हैं आउट ऑफ 120 लेट्स से. एंड यू वॉक इनटू द एग्जाम हॉल विद दिस सॉर्ट ऑफ माइंडसेट कि अरे मुझे तो 60 मिल रहे हैं, मुझे तो आएंगे ही नहीं. ट्रस्ट मी, क्लैट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, एंड हाउ पीपल परफॉर्म इन दैट एग्जाम इज ऑल्सो वेरी अनप्रिडिक्टेबल. देर आर पीपल हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड अ डे, वो बस ऐसे जाके ऐसे मजाक मजाक में दे दिया, उनका हो गया टॉप 1 टॉप 3 और टॉप 4 एनएलयूज. देर आर पीपल जिन्होंने 3-4 लिटरली लाइक 1 साल 1.5 साल अच्छे से प्रिपेयर किया है, बहुत अच्छे से कोचिंग मॉक्स एवरीथिंग डिलीजेंटली किया है, एंड दे डोंट डू. दिस इज नॉट टू अगेन scare you, but I'm just saying कि at the end of the day what is going to happen in that exam is going to be completely different from what mocks you have given, what everything has happened so far in your life. So don't get overconfident. अगर आपको बहुत अच्छे मॉक स्कोर्स है कि ओ मेरा तो हो ही जाएगा NLS या NUJS और समथिंग लाइक दैट, बट एट द सेम टाइम डोंट गेट सो अंडर कॉन्फिडेंट कि अरे मुझे तो 60 मिले हैं आउट ऑफ 120, मेरा तो कोई सिचुएशन चांस ही नहीं है. ऐसा नहीं है. both situations can happen, and so be prepared for एनी सिचुएशन. एंड इसी वजह से डू नॉट कैरी दैट लास्ट मॉक स्कोर कि उसको ही दिमाग में लेके आप अगर जाओगे तो इट विल इम्पैक्ट यू नेगेटिवली. वेदर यू आर वेरी हैप्पी विथ योर लास्ट मॉक स्कोर और वेरी सैड विथ योर लास्ट मॉक स्कोर, दैट कैन इम्पैक्ट योर एग्जाम इन अ नेगेटिव वे अल्टीमेटली. सो दिस इज ऑल. नाउ इन टर्म्स ऑफ a lot of people say कि लास्ट के कुछ दिन में क्या प्रिपरेशन करें, तो मैं आपको बस इतना ही बोलूँगी कि व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन आई वुड से आप जीके पे फोकस करो, ट्राई टू रिवाइज द जीके, एंड दैट इज इट. एंड थोड़ा सा मैथ्स, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी आपकी वीक पॉइंट्स है कोई भी अदर सेक्शन पे, तो आप वो सबको रिवाइज कर लो, थोड़ा सा सेक्शनल टेस्ट दे दो. मॉक टेस्ट आई वुड से लास्ट 1 वीक में 1-2 मैक्स टू मैक्स 2-3 दिन पहले, बट दैट इज अबाउट इट. डू नॉट फ्रेट ओवर द एग्जाम मच, ठीक है. गेट sick in the last 1 week. I got sick, it negatively impacted my exam. Do not get sick. जो भी है, जो भी आपकी तबीयत खराब हो रही है, अगर आपको कुछ हो रही है तो डॉक्टर दिखा लो, जल्दी से दवाई खा लो, जो भी करो. डू नॉट गेट सिक. डोंट ईट आउट, बाहर का उतना खराब खाना मत खाओ. ट्राई टू हैव अ प्रॉपर रूटीन, हाइड्रेट करो, ड्रिंक वाटर, मेक श्योर दैट यू डू नॉट गेट सिक बिफोर द एग्जाम बिकॉज इट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट योर पेपर. And yeah, apart from that, just kuch mindset building. Just let me tell you guys something, this paper is not worth itna. I know you have prepared a lot and very many congratulations, but it's fine. अगर आप ये 2 घंटे आपके लाइफ को डिफाइन नहीं करते, अगर आपको नहीं मिला, लेट्स से क्या हो गया, लाइफ में इतना कुछ कर सकते हैं आप लाइफ में. इट्स नॉट लाइक यू हैव टू कि क्लैट इज़ द ओनली अल्टीमेट गेम. अगर आपको क्लैट नहीं मिला, टॉप 5 नहीं मिला, इट डजंट मीन योर लाइफ इज ओवर. देयर आर myriads ऑफ अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स जो आप दे सकते हो विच आर इक्वली गुड. देन यू कैन
डू सो मेनी अदर थिंग्स, आप किसी और फील्ड में भी जा सकते हो. अ लॉट ऑफ मोस्ट पीपल हु कम इवन थ्रू क्लैट वंस दे कम इनटू कॉलेज, ऐसा नहीं है कि लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 years इन दिस कॉलेज. आई कैन टेल यू दैट ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल खत्म हो जाती है और ओ आप एनयूजेस में आ गए या टॉप 3 में आ गए तो ओ माय गॉड लाइफ इज़ द बेस्ट एंड इट्स एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी. ऐसा बिल्कुल नहीं है. लिटरली आपको हर चीज़ में फिर भी स्ट्रगल करनी पड़ती है. लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स आती रहेंगी एंड यू हैव टू लर्न टू टेक इट वन एट अ टाइम. सो वट एवर इट इज़, देर इज़ अ डेस्टिनी फॉर यू, देर इज़ अ पाथ फॉर यू. डोंट लेट 2 hours डिफाइन यू. यू आर लिटरली 16, 17, 18 years old. लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है यार. एंड डोंट गेट सो डिसहार्टन अगर पेपर खराब हुआ, पेपर अच्छा गया, जो भी हुआ दैट इज़ देयर. जो भी होगा अच्छा ही होगा, अच्छे के लिए होगा. अल्टीमेटली यू आर गोना लुक बैक इनटू दिस टाइम एंड रियलाइज कि यू गेन समथिंग पॉजिटिव. आपको नॉलेज मिली, आपको विजडम मिली, यू हैड अ गुड एक्सपीरियंस. तो अगर आपको पेपर अच्छा जाता है एंड यू गेट इनटू अ गुड एनएलयू, कंग्रेचुलेशंस. इफ यू डोंट ऑल्सो, दिस myriads of other things. Life will not stop for you, let me tell you that. And also just one tip, and this is very important because this really ruined my mental health, is after you come back from the exam hall, not sit and start to match your questions with the YouTube compilations. आधे से ज़्यादा टीचर्स गलत वलत बोलते हैं आपको. एंड मोर देन दैट, इवन इफ दे आर टेलिंग द थिंग, क्या हो जाए आपका तो पेपर हो गया ना, अब उसको देख के रिविजिट करके इट्स नॉट अ मॉक, दिस नो पॉइंट, इट्स द एक्चुअल पेपर. उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते. तो प्लीज़ वो सब वो क्लैट आंसर की एंड ऑल वाली वीडियोज़ मत देखो. It really ruins your mental health. And yeah, I literally had to take like, मतलब मुझे तो पैनिक अटैक्स आ गए थे वो सब देखने के बाद. सो डोंट डू दैट. दैट्स वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस आई विल गिव यू. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड अगर आपके पास कुछ भी है, कुछ शेयर करना है, तो यू कैन DM मी, यू कैन मैसेज मी. आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट दैट गुड एट रिप्लाइंग टू मैसेजेस बिकॉज बहुत सारी चीज़ें रहती हैं बिकॉज ऑफ विच मैं खुद बहुत ज़्यादा बिजी हूँ थी एंड ऑल. बट आई ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एज मच एज आई कैन. And yeah, so wo of course, and if you feel, don't keep the anxiety in your heart. Talk to somebody who is a licensed professional, or like even talk to like your friends, your family, anyone to share stuff with, जो भी आपके दिल में है. I think that really helps a lot. So एग्ज़ाम हॉल में आप जब भी जाओगे, प्लीज़ काम प्लीज़ बी काम. एकदम आराम से जाओ, एकदम कामली जाओ, एकदम ज़्यादा मत सोचो. जस्ट अपना पेपर दो. आपको पता है आपको आपने कितना प्रिपेयर किया है. जस्ट गो थ्रू दैट. ओके. सो येस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लैट.